Psalm 8. For the director of music, according to Gittith, a psalm of David. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. From the lips of children and infants you have ordained praise because of your enemies, to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him? You made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You made him ruler over the works of your hands. You put everything under his feet, all flocks and herds, and the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea, all that swim the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सबको परमेश्वर के घर पे स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर अब हम सबको एक और संडे प्रभु के घर पे आने के लिए मौका दिया, सबको लेके आया। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कहना शुरू करेंगे। Let's all begin to thank God for His faithfulness, for everything He has done in our lives. Let's close our eyes. Let's open our hearts. आइए हम हमारे आंखों को बंद कर हमारे दिल खोलकर हमारे दिलों खोलकर परमेश्वर के ओर देखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करेंगे। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. We thank you Father for everything that you have done in our lives. You have brought all of us here today. प्रभु आप हम सबको आज सुबह यहाँ पर लेके आया तंदुरुस्ती के साथ। प्रभु जी आपको आराधना करने के लिए हमें लेके आया। प्रभु हम जानता है आप हमारे बीच में हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता है। प्रभु let's declare the lordship of Christ over our lives and let's ask God for forgiveness for sins we have committed. आइए हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे। जो भी गलतियां, जो भी कमियां पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते के दिनों में हमारे जीवन में हुआ, जाने और अनजाने में, वो सारे गलतियों के लिए हम माफी मांगेंगे। We'll ask for forgiveness for all the sins we have committed, knowingly and unknowingly. Let's open our mouth and begin to ask God for forgiveness. आइए हम प्रभु से माफी मांगेंगे। प्रभु जी हम आपसे माफी मांगता है। पिछले दिनों में जाने अनजाने में हम आपके खिलाफ काम किया। प्रभु जी हम पाप किया, आपके खिलाफ पाप किया। प्रभु हमारे मुंह से, हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से, हमारे दिल से, हमारे ज्ञान से हम आपके खिलाफ पाप किया। प्रभु हम आपसे मांगता है आप हमें माफ करना। प्रभु आज सुबह आपकी पवित्र लहू से हमें धोना, आपके सामने आपके बच्चे होकर खड़ा करने के लिए हमें सहायता करना। Lord, we ask of your forgiveness for the sins we have committed. Restore us, Lord, restore us. Make us righteous, make us holy, make us innocent, make us pure. Lord, you are making us right before you, and you have given us the right standing before you. Lord, we receive the righteousness right now. Hallelujah. प्रभु आपके द्वारा धार्मिकता मिलता है। प्रभु उस धार्मिकता हम अपने जीवन में स्वीकार करता है। आपके सामने आपके बच्चे होकर हम खड़ा हो रहा है। प्रभु हमसे बात करना। Lord, we allow you to work in our lives. आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। Let's welcome the Holy Spirit into our midst. हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आज
जो भी आप हमसे बात करना चाहता है वो सुनने के लिए, जो भी आप हमें दिखाना चाहता है वो देखने के लिए, जो भी आप हमें सिखाना चाहते हैं वो सीखने के लिए, जो आप हमारे द्वारा करना चाहता है वो करने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण करता है। Holy Spirit, we allow you to work in our lives this morning. Whatever you want to show us, help us to see it. Whatever you want to speak to us, help us to hear it. Whatever you want us to do, help us to do it. Lord, this morning we allow you to work with complete freedom in our midst. Lord, help us to see you working. Lord, we submit each and every one of us who are here into your mighty hands. Lord, whatever might be the struggles that they have, whatever might be the situations that they are going through, whatever might be the burdens that they have in their hearts, Lord, we give that unto you. Lord, we believe you are enough for us. We allow you to work in our lives. Lord, we submit today's service into your mighty hands. We submit each and every one of us into your mighty hands. Lord, we submit the worship team into your hands, Father. Help us to sing songs. Help the worship team to lead people into worship. And help them to worship you with whole heart and with all strength. Lord, you be exalted through our songs, through our service. Lord, help us to worship you in truth and spirit. We submit each and every one of us in your mighty hands. And all those who are going to come, we pray and declare your freedom, your healing, godly encounter in each and every one of our lives. We bless today's service. We thank you, Father, your presence is here. We thank you, we praise you. In Jesus' most holy name we pray. Amen. We
We are here to praise you. We are here to worship you, for you alone are worthy of all the praise, all the honor, Lord. Presence Not by the works that I have done,
उसकी इस आत्मा में, जो पवित्र आत्मा हमें दी गई है, उसके सामर्थ्य से चंगाई मिलती है, उसके सामर्थ्य से हर काम हो सकता है। आज के दिन आपका जो भी विषय हो, आपको चंगाई चाहिए, मांगिए। आपको उद्धार चाहिए, मांगिए। आप उसके प्रेम को चखना चाहते हैं, आप उससे मांगिए। वो यहाँ है, उसकी आत्मा हमारे मध्य में है, उसकी आत्मा यहीं पर है। आपको जिस चीज की कमी लगती है, आप जिस चीज को मांगना चाहते हैं, उससे मांगिए, वो देगा। क्योंकि वो हमारी योग्यता को देखकर नहीं देखता है, नहीं देता है। वो अपने प्रेम के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा देता है। तो आपको जो चाहिए मांगिए, वो यहाँ है। वो इंतजार कर रहा है कि आप उससे मांगे, और एक पिता के समान वो देगा, आपकी हर जरूरत को देगा। कुछ और गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए, उसके सामर्थ्य को मानते हुए कि उसके सामर्थ्य के द्वारा चंगाई मिलती है, उसके सामर्थ्य के द्वारा उद्धार मिलता है। हम उसकी आराधना करेंगे। जो लोग तालियां बजा सकते, मैं चाहूंगी यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा बंद रहता, आत्मा बंद रहता, आत्मा बंद रहता, पवित्र आत्मा बंद रहता। Jesus, give him some आत्मा बंद रहता।
योसना गाएंगे आपके नाम शानम शादी योसना तेरे यीशु का बेटा हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया To go hallelujah.
floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, open the floodgates of We praise you, we worship you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Father, that you're here. We thank you for your presence, Lord, that is here. We give ourselves into your hands, Lord. We give our body, our mind, our soul into your hands, Lord, Father. And we ask you, Father, to work through us, Lord, Father. You speak to us, Lord. We give our heart to you, Lord, Father. You help us to receive from you, Father. Whatever you have to give, Lord, Father, help us to receive it from you, Lord. We give ourselves into your hands, Lord. We submit the rest of the time into your hands, Father. You speak to us through your word, Lord. We come into your presence to hear from you, Father. May your word speak to each one of us, Father, according to our circumstances, according to our situation, Lord, according to our wants and needs, Father. We thank you for this time of worship that you've given us, Father. Thank you for your presence. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Praise the Lord. We have been blessed through the wonderful service. परमेश्वर हमसे बात कर रहा था वर्शिप के समय में, और पवित्र आत्मा हमारे बीच में, जैसे हमने गीतों के बोलियों में बताया था, आत्मा मंडरा था। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा था और अभी भी वो मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा हम सबसे बात करेंगे और हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। आप सब लोगों को परमेश्वर के घर पे स्वागत करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई पहली बार कलीसिया अटेंड कर रहा है तो हाथ उठा सकता है, और हम वी वुड लाइक टू वेलकम यू इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। सबको मैं एक और बार परमेश्वर के घर पे स्वागत करना चाहता हूँ। आइए हम थोड़ी देर का मनन के लिए हमारे ध्यान को वचन की ओर बढ़ाएंगे। हम बढ़ाएंगे इब्रानियों का पत्री, इसकी 12वीं अध्याय, उसकी 24वीं आयत। Hebrews chapter 12 verses 24. It says, वहां पे ऐसे लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हमें से कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? हमें यहाँ पर इब्रानियों का पत्री का लेखक कुछ बातें बता रहा है। जब हम इसके ऊपर वाला आयत भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पढ़ेंगे, तो वहां पर लेखा ऐसे बताता है, आप लोग अभी जो पुराना नया नियम की लोग है, नया नियम का कलीसिया है, वो अभी पुराना नियम के सामने नहीं, पुराना मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम के सामने नहीं, उस प्रमाण के सामने नहीं, बल्कि इस आयत में बहुत कुछ बोलने के बाद इस आयत में बताता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव का उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। वहां पे कुछ लिखा है, यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। हाबिल का लहू क्या बात करता है, उसके बारे में हमें उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़ सकता है।
आइए हम हमारा ध्यान हम उत्पत्ति के पुस्तक की ओर बढ़ाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 10। उत्पत्ति 4 अध्याय 10वीं आयत। वहां पे लिखा है, उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। यहाँ पर इसके बारे में हम पता है, यहाँ पर काइन और हाबिल के बारे में बात करके वहां पर लिखा है, काइन और हाबिल दोनों बलि चढ़ाया प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। लेकिन वचन में ऐसे लिखा है, हाबिल में परमेश्वर ने हाबिल का बलि और उसमें प्रसन्न किया, लेकिन काइन का बलि और काइन में परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। फिर काइन ने क्या करता है? काइन ने अपने भाई के ऊपर गुस्सा करता है, फिर उसको मार डालता है। उसके बाद परमेश्वर काइन को कुछ कहता है। ओए, हम अभी जब वो 10वीं आयत में वो पढ़ता है, परमेश्वर काइन से पूछता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? काइन ने बताता है, मेरे को पता नहीं, क्या मेरा भाई का देखभाल करने वाला है क्या? ऐसे पूछता है काइन। तब परमेश्वर की वाणी आता है, परमेश्वर ने बताता है, तूने जो किया मैंने देखा। और परमेश्वर ने कहता है, तूने क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरे ओर चिल्ला कर मेरी दुआई दे रहा है। हाबिल का लहू क्या चिल्लाता था? हाबिल का लहू ये चिल्लाता था, परमेश्वर तू मेरे लिए काम कर, तू अपना न्याय दिखा। मैंने जो महसूस किया वो न्याय नहीं है ना? हमें पता है हाबिल एक धार्मिक व्यक्ति था, हम लोगों से बहुत धार्मिक था। जितना भी काम हमने किया हाबिल कभी नहीं किया, क्योंकि उस समय ज्यादा इंसान नहीं था, वे दुनिया इतना डेवलप नहीं हुआ था। उनके जीवन में पाप करने का मौका कम था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर उसमें प्रसन्न किया। मतलब वो हमने हमारा पुराने जिंदगी से ज्यादा धार्मिक था हाबिल। लेकिन हाबिल जो महसूस किया वो न्याय नहीं था। हाबिल का लहू परमेश्वर से पुकारता, चिल्ला कर दोहाई देता है, परमेश्वर मेरे लिए आपका न्याय दिखा। हाबिल का लहू, लेकिन हाबिल का लहू से ज्यादा पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो बेहतर उत्तम बातें करता है। वो क्या बातें करता है? परमेश्वर यीशु का, प्रभु यीशु मसीह का लहू भी, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, उन्होंने बताया था, प्रभु परमेश्वर इनसे माफ कर, क्योंकि इन्होंने जानता नहीं उन्होंने क्या किया। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने लिए मरा। और वचन में लिखा है, प्रभु अपने लहू लेकर परमेश्वर के प्रभु पिता के सामने गया, पिता के पास गया, और पिता के सामने खड़े होकर हम सबके लिए विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू भी वही बताता है, उत्तम बात ये बताता है, प्रभु आपका न्याय दिखाओ, आपका धार्मिकता दिखाओ। प्रभु का धार्मिकता ये है पाप की मौत, पाप की द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी मौत है। ये प्रभु का, परमेश्वर का न्याय है। प्रभु यीशु मसीह बताता है, प्रभु परमेश्वर आपका न्याय दिखा, पाप की मजदूरी मौत है। ये सारे इंसानों के लिए मैंने मेरा लहू बहाया, सबके लिए मेरा लहू बहाया, सारे पापों के लिए मैं अपने आप को बलिदान किया। मेरे द्वारा सबके लिए आप माफ करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू यह बताता है, हम सबके लिए परमेश्वर पिता अपने बेटे को भेजा, उन्होंने अपना लहू बहाया हम सबके पापों के लिए। यह उत्तम बात आज भी कर रहा है। जो भी उस पर विश्वास करता है, जो भी उसके लहू से माफी मांगता है, उनको
माफी मिलता है, क्षमा मिलता है, धार्मिकता मिलता है, जो धार्मिकता यीशु मसीह में था। उस लहू से हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा। हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बच्चे हैं। हम धार्मिक है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये उत्तम बातें आज भी प्रभु का लहू बताता है हम सबसे। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने अपने लहू लेकर खड़ा हो रहा है। आज भी हमारे लिए विनती करता है, हम सबके लिए। हर दिन जब भी हम अभी भी छोटी छोटी काम परमेश्वर के खिलाफ करता है, तभी भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। He intercedes for each and every one of us, every day, every time. ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष है हमारे लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए। भाई और बहनों, हमारा जीवन हम ये जानकर आने वाले दिनों में जीना चाहिए, हम परमेश्वर के बच्चा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो रहा है। वो हमें चलाएंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। जिस सुसमाचार हमने स्वीकार किया, उस सुसमाचार को, उस यीशु मसीह को दूसरों को भी बताने के लिए, दूसरों को भी उस यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर हमें जिम्मेदारी दिया है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुंह से परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरे के ओर बढ़ाने के लिए, दूसरे के ओर पहुंच जाने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। It was such a joy to hear all those wonderful testimonies. ये सारे खूबसूरत गवाहियां सुनकर इतने आनंद होता I है। praise God for God is doing a work in our मैं lives. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु हमारे बीच में काम कर There रहे are some of you who have come here for the very first time. We want to welcome you into the house of हैं। आप God. में से कुछ लोग पहली बार इस कलीसिया में आए, हम आपको भी स्वागत करना Shall we चाहते just clap our hands? आप हाथ दिखा देना ताकि हम आपको देख सके और हम सब मिलके थाली बजाएं कि उनको स्वागत करेंगे। Hallelujah! Thank you, thank you. आप सब को स्वागत करते हैं। We praise God that many of us have been able to make decisions, especially to obey God and God's commands. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हम में से यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोग प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय ले पाए हैं और पालन कर पाए हैं। We want to go very quickly to the word, Romans chapter 6 verses 16 and 17. जल्दी से वचन की ओर बढ़ेंगे। नए नियम में रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय का 16 से लेके 16 और 17। Romans chapter 6, 16 and 17. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin which leads to death or of obedience which leads to righteousness? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। Over here, then 17th verse. But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. और 17वें आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। Today what I would like to talk to you is about obedience. आज मैं आपके सामने आज्ञाकारिता के बारे में बात करना चाहूंगा। Six people came forward and shared their testimony about the fact that God has touched them and they would like to take a step of obedience and be baptized. आज हमारे बीच में 6 लोग आगे आए और उन्होंने बताया किस प्रकार प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए निर्णय लिया। But I believe there are more people who want to take baptism. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और भी अधिक लोग हैं यहाँ पे जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। I believe that there are more people who are saying, I want to know more about baptism. और मैं जानता हूँ यहाँ पे मैं विश्वास करता हूँ यहाँ और भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे बपतिस्मा के बारे में और ज्यादा जानना है। Yesterday as I was praying, in my heart I was saying, God, there are 7 people who need to be baptized. और कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे दिल में प्रभु से कह रहा था, प्रभु 7 लोग हैं जो
बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। And my wife corrected me and said, no, it is 6 people. तो मेरे पत्नी ने बोला नहीं 7 नहीं है 6 है। I said, no, somehow I feel that there is going to be a 7th person. लेकिन मैंने कहा नहीं, अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं 7वां कोई व्यक्ति होगा, If God calls you to certain things, यदि आज प्रभु आपको to certain things, to certain आपको कुछ matters, करने के लिए आज कुछ आपको बता रहा है, you blindly obey. तो आप अंधे होकर माने कि और कुछ सोचे बिना आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। Whether it be responding to the gifts of the Holy Spirit, चाहे वो पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हो, whether it be to responding to the fact that I am a sinner, I need Jesus in my life, चाहे वो इस बात के विषय में हो कि मैं पापी हूँ और मुझे मेरे जीवन में यीशु की जरूरत है, whatever it might be. वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। There was a Egyptian ruler, eunuch, who was traveling by a chariot. और वो कूश देश का एक खोजा था जो रथ में बैठकर यात्रा कर रहा था। As he was traveling, he did not understand the word of God. और जैसे वो रथ में बैठा हुआ था, वचन उसके हाथ में था, पढ़ रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं God आया। sends Philip alongside with him. और वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर फिलिपुस को उसके पास भेजते हैं। Philip explains to him the word of God. फिलिपुस उसको सब कुछ समझाता है। Immediately this man says, look, there is water. और तुरंत फिर बाद में ये व्यक्ति कहते हैं, देखो यहाँ पे पानी है। He might not have had clothes to change into, अब देखिए, हो सकता है उसके पास बदलने के लिए और कपड़े एक्स्ट्रा but नहीं थे, he had a word within him लेकिन उसके अंदर वो वचन आया that say you need to obey. और वो वचन ने उससे कहा कि तुझे आज्ञा का You पालन need करना to be है, baptized. तुझे। And he just said, I want to be और वो baptized. तैयार हो गया, उसने कहा मैं बपतिस्मा लेने He did तैयार not हूँ। look at the fact that he is a great ruler. उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा एक अधिकारी हूँ। He does not look at the fact that he does not have clothes. उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैर कपड़े नहीं है। He does not look at the fact that I do not know this person, Philip. I just met him right now on the road. उसने ये भी नहीं सोचा कि ये व्यक्ति को तो मैं अभी अभी रास्ते में मिला हूँ, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। He said, the word of God convicts me. उसने ये कहा कि परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है। Paul is telling the Romans, the people in Rome, पौलुस रोम में जो लोग हैं उनसे ये कह रहा है। he says, do you not know if you present yourselves to anyone as obedient slaves? और यहाँ पे वो कहता है कि क्या आप जानते नहीं हो कि आप यदि अपने आप को किसी के सामने एक आज्ञाकारी दास के रूप में यदि आप सौंप दो। You know, today we don't have slaves. देखिए, आजकल इस संसार में दास का कोई प्रथा नहीं है, But during that period of time, लेकिन उन दिनों में they had people who were slaves. ऐसे लोग थे जो दास होते थे। And many times people would come to the master and allow themselves to be slaves. और कई बार लोग स्वामियों के पास आकर उनसे कहते थे कि मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। Because if they did not go into slavery, क्योंकि कई बार यदि वो दासत्व में नहीं जाते, they would enter into financial disaster. तो उनके जीवन में आर्थिक तंगी आती थी। There were also people ऐसे भी लोग होते थे who were born in the master's house. कि कुछ लोग स्वामी के घर में ही पैदा होते थे। From birth itself, they are the slaves of the तो master. वे जन्म से ही इस स्वामी के दास होते थे। So there were two kinds of people. तो 2 तरह के दास थे। People who were born slaves. एक जो स्वामी के घर में ही दास के रूप में जन्म लिए हो। People who were slaves so that they can receive an income, a financial income in their lives. और दूसरे जो अपने आर्थिक तंगी के कारण खुद को स्वामियों के हाथों में बेच देते थे और उनके दास बन जाते थे। And Paul tells them, तो पौलुस ये कहता है, listen, you should not be a slave. वो कहता है हमें दास नहीं बनना। To what? किसका दास He नहीं mentions बनना? over there, if you become a slave of sin, you are a slave of sin. वो कहता है यदि आप पाप को अपने आप को सौंप दो तो आप पाप के दास बन जाते हो। And if you are a slave to sin, it will lead to death. और यदि आप पाप के दास बन गए तो पाप आपको मृत्यु की ओर ले Then जाएगी। he says the second thing. और दूसरी बात वो बाद में The कहता है, opposite of sin is nothing else but obedience over there. वो कहता है पाप का जो विलोम में जो है वो और कुछ नहीं लेकिन आज्ञाकारिता He है। says, or of obedience which leads to righteousness. वो कहता है या तो फिर चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। So he says there are two वो things. कहता है 2 चीजें You're हैं। either a slave to sin, हो सकता है आप पाप के दास हो or you are a slave to obedience. या तो फिर आप आज्ञा मानने के
दास हो, if you are a slave to sin, यदि आप पाप के दास हो, you will die. तो आपका अंत मृत्यु है। The last verse of that same chapter, it says, the wages of sin is death. और इसी अध्याय के आखिरी आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। There is a wage that is given to anybody who works. देखिए, जो भी व्यक्ति काम करता है, उसके अपने काम के अपने उसकी मजदूरी दिया जाता है, उसका जो तनख्वाह दिया जाता है। When you go to office, जब हम अपने दफ्तरों में जाते हैं, depending on the work that you do, तो जैसा हमारा काम होता depending है, on the contract that has been written, जैसा कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया your है, boss will pay you at the end of every month. आपका जो बॉस है वो हर महीने के अंत में आपको आपका तनख्वाह देता है। The wages of sin, sin also has a wage. तो देखिए, पाप जो है, पाप का भी एक तनख्वाह है। And Paul says, listen, if you follow and if you become a slave to sin, पौलुस कहता है, यदि आप पाप के पीछे हो लोगे, you will get a salary. और यदि आप पाप के दास बन जाओगे, तो पाप की ओर से आपकी मजदूरी मिलेगी, And that salary is death. और वो है मृत्यु। You will completely live, you're spiritually dead. आपका जो आत्मिक मनुष्य है, जो आपका आत्मा है, वो पूरी तरह से मर जाएगा। Each one of us who are born into this world, देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति संसार में जन्म लिए we है, are all sinners. हम सब पापी है, We are all sinners. हम सब पाप में जन्म लिए Our हैं। parents and grandparents and our great-great-grandparents have sinned. हमारे माता पिता, हमारे दादा, पूर्वज सभी लोगों ने पाप किया है। And because we continue in the same bloodline, और क्योंकि हमारा जो वंशावली है, वो इसी पापी वंशावली में हम पैदा होते our हैं, blood is contaminated. हमारा जो खून हमारे शरीरों में जो खून बहता है, वो खुद पाप का एक खून है। But the Bible says Jesus, forsaking his heavenly glory, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु उसके स्वर्गीय महिमा को तजकर he comes into this world. वो इस संसार में उतर आता He है, sheds his entire drop of blood. और उसके शरीर का खून वो हमारे लिए बहाता है। You know, today we have medical science. देखिए, आज हमारे पास मेडिकल साइंस But है, back then they did not have this much of knowledge. लेकिन उन दिनों में मेडिकल साइंस का जो विज्ञान है, वो इतना अधिक बढ़ा हुआ नहीं था, उनको इतना ज्ञान नहीं था। If I bleed, what will come out? यदि If I bleed, if I get hurt, मुझे चोट पहुंच जाता है, तो मेरे अंदर से क्या आएगा? खून आएगा. We'll have blood coming out of my body. You said that. All right, but if blood will come out of my body, but in Jesus' case, लेकिन यीशु के जीवन में क्या हुआ? when he was crucified, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया to गया, check whether he was dead, they pierced him with a sword. तो उनको ये देखना था कि यीशु वास्तव में मरा कि नहीं, तो वो भाला से उसके जो साइड में उसको छेद मारा उन्होंने। The Bible says blood and water came out. और वचन में लिखा है कि उस वक्त खून और पानी दोनों एक साथ बह के निकला। Today we know through medical science तो आज मेडिकल साइंस के द्वारा हम जानते हैं that when there is no longer any blood within the body to be poured out, तो जब शरीर के अंदर जब खून निकलने के लिए जब कुछ बचता नहीं है, water also flows out of our body. तो उसके बाद पानी शरीर में से पानी बाहर So निकलता it है। means that Jesus shed his entire blood for each one of us. तो इसका मतलब ये होता है यीशु ने अपना सारा खून हमारे लिए बहा दिया, And because of his blood, और उसके खून के वजह से I can receive that sacrifice for myself. और उस बलिदान को मैं स्वीकार कर सकता हूँ मेरे अपने फायदे के लिए। My blood does not have to be contaminated any longer. अब देखिए, मेरे अंदर से जो खून पापी खून जो बहता है, वो आगे से पापी रहने की जरूरत नहीं I है। can say, Jesus, your death is enough for me. मैं कह सकता हूँ कि यीशु तेरी मृत्यु मेरे लिए काफी Your है, punishment is enough for me. मैं तेरे मृत्यु को मैं अंगीकार करता हूँ, वो मेरे लिए काफी है। I deserve to die. देखो, मैं योग्य हूँ, मेरी ये योग्यता बनती है कि मैं मृत्यु को But पाऊं, you died for me. लेकिन मेरे जगह तूने अपना जान दिया। We accept Jesus as our personal savior. और उस मृत्यु को, उस यीशु के उस बलिदान को जब हम स्वीकार करते हैं, तो यीशु को हमारे व्यक्तिगत जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते And we हैं, make him the Lord of our life. और उस यीशु को हम हमारे जीवन के प्रभु बनाते But हैं। that is not just enough. लेकिन वो काफी नहीं है। We need to live in constant obedience to Jesus. हमें हमेशा यीशु के आज्ञाओं का पालन करते हुए जीना And है, that is what we are
saw 6 people come and testify. और वही उसके बारे में आज हमने देखा 6 लोग आगे आए और उन्होंने अपनी गवाही दी। They said the Bible tells us, commands us to get baptized. वो उनकी गवाही ये थी कि देखो वचन में लिखा है कि जो प्रभु यीशु का आज्ञा पालन करते हैं, वचन में आज्ञा दी गई है कि हमें पानी में डूब के बपतिस्मा लेनी I है। want to obey. तो मैं उस आज्ञा का पालन करना चाहता If you हूँ। notice, 2 people mentioned that they were baptized as a child. आपने यदि ध्यान दिया हो, आज 6 लोगों ने जो गवाही दी, उनमें से 2 लोगों ने कहा कि उनके बचपन में जब वो छोटे थे, बच्चे के रूप में उनकी बपतिस्मा हुई That थी। was a decision that their parents made for them. देखिए वो जो निर्णय था वो उनके माता पिताओं का था। A child cannot make an obedience. एक बच्चा जो छोटा होता है वो अपने इच्छा पूर्वक एक आज्ञाकारिता नहीं कर सकता। The parents made that decision for them. वो जो निर्णय है वो बच्चा नहीं ले सकता, वो निर्णय उसके माता पिता उसके लिए लेते हैं। We as adults, लेकिन हम जो बड़े हैं, we as children of God, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, we need to obey Jesus when we understand what the word of God says. हमें परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है जब हम इस बात का समझ जाएंगे कि वचन में क्या लिखा है। When we believe that Jesus died for us, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे when we लिए मरा, accept him as our Lord and our Savior, जब हम यीशु को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार करते we हैं, are called to constantly live in obedience to Jesus. तो हमें खुदा ने बुलाया है कि हमेशा लगातार निरंतर यीशु के साथ यीशु का आज्ञा का पालन करते हुए When we हम read, अपना when we जीवन read बिताएं। the Bible, जब हम वचन को we पढ़ते हैं understand baptism is immersion. तो हम ये समझ सकते हैं कि बपतिस्मा का मतलब ये है पानी में डूब के लेना। Unless we are immersed, जब तक हम पानी में डूबते नहीं we are हैं, not baptized. तब हमारी बपतिस्मा नहीं हुई And है। in fact, in the Greek Orthodox Church, not in every Orthodox Church, in the Greek Orthodox Church, और देखिए जो यूनानी जो नामधारी कलीसिया है, because they understand the meaning of the word immersion, क्योंकि ये जो शब्द है बपतिस्मा वो यूनानी शब्द है और उसका मतलब वो अच्छे से समझते हैं, but because they do not want to break tradition, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो एक नामधारी कलीसिया है, वो उनका जो परंपरागत जो उनका प्रथा है वो छोड़ना नहीं they have the चाहते। practice of baptizing children. उनके अंदर एक प्रथा आ चुकी थी कि वो छोटे बच्चों की बपतिस्मा दे, So they don't sprinkle the child. तो वो क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर पानी छिड़कते नहीं है, They take the child and dip the entire child into the water 3 times. और वो क्या करते हैं उस कलीसिया में वो छोटे बच्चे को पानी के अंदर पूरी तरह से डुबो देते हैं 3 बार। It is very dangerous. वो बहुत ही खतरनाक है, Because the child is not making an act of obedience. क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चा आज्ञाकारिता नहीं कर रहा। We who understand the word of God, हम जो परमेश्वर का वचन को समझते हैं, we who understand that baptism is representing us identifying with the death, the burial and the resurrection of Jesus. हम जो समझते हैं, वचन में लिखा है कि बपतिस्मा क्या है, प्रभु यीशु के मृत्यु, उनका गाड़ना और उनके शरीर का जी उठना, इसके साथ हम विश्वास करते हो। हम भी हमारे पाप, आज तक के पापी जीवन को मार डालते हैं, गाड़ देते हैं और यीशु के साथ एक नए जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं, इस बात की घोषणा करते We हैं। are making that act of obedience. और वो घोषणा, उस आज्ञा का हम पालन करते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। Romans 5 verses 19. रोमियो 5 के 19 में ऐसे It लिखा says, है, for as by the one man's disobedience the many were made sinners, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। you see, obedience is so close to the heart of God. देखिए आज्ञा मानना परमेश्वर के दिल के बहुत करीब है। Sin entered not because they ate fruit. देखिए पाप क्यों इस संसार में कैसे पाप ने प्रवेश किया, इसलिए नहीं कि उन लोगों ने एक फल खाया, It is because they disobeyed God. वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं माना। God told Adam and Eve, don't eat of this fruit. खुदा ने उनको आज्ञा दी थी कि इस पेड़ के फल से ना खाए, They disobeyed. उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। One act of disobedience. वो एक अनाज्ञाकारी What था। does it read over there? वहाँ पे क्या लिखा है, Many were made sinners. वो एक उसके कारण
बहुत लोग पापी ठहरे, Many were made sinners. बहुत लोग उसके द्वारा पापी But then ठहरे। you read about the next act of obedience. लेकिन उसके बाद पढ़े कि आज्ञा मानने से क्या हुआ। So by the one man's obedience, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से the many will be made righteous. बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। Jesus did an act of obedience on the देखिए, cross. यीशु ने क्रूस पर आज्ञा का पालन किया। Many times we say Jesus, when he was on the cross, he was thinking about you and me. हम कई बार कहते हैं कि जब यीशु क्रूस पे था तो वो आपके बारे में, मेरे बारे में सोच रहा No, था। the Bible does not say that. बाइबल में ऐसे नहीं लिखा, It does not say that. बाइबल में ऐसे नहीं लिखा। He was in great pain. वो बहुत ही दर्द में था। In fact, he asked the Father, Father, if possible, take this cup away from me. और दर्द इतना ज्यादा था कि एक बार उसने क्रूस पे चढ़ाने से पहले ये पिता से प्रार्थना करते वक्त कहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर When दे। he was on the cross, लेकिन जब वो क्रूस पे he था, was not thinking about me. वो और कुछ नहीं सोच रहा He था। was thirsty. उसे प्यास लगी He थी। said, give me something to drink. उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पीने को दो। When he was on the cross, जब वो क्रूस पे था, he was experiencing great pain. बहुत अधिक दर्द उसे हो रहा था। He was not thinking about the people who were giving him pain. वो उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था जो उसे दर्द दे रहे थे। That was not what kept him on the cross. नहीं, उसके वजह से वो क्रूस पे नहीं था। He looked to the Father. वो पिता की ओर देखा। He says, Father, उसने कहा, हे पिता, your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो जाए। What kept him on the cross? यीशु को क्रूस पर क्या, क्रूस पे लटकने से या उस क्रूस पे अपना जान देने को किस चीज ने यीशु को मजबूर किया? That act that caused him to give himself for us. That act that caused him to give himself for us. कि वो आज्ञाकारिता जिसके वजह से यीशु ने हमारे लिए अपना जान दिया। He was looking at the Father. वो सिर्फ अपने पिता की ओर देख He रहा was था। listening to the Father. वो पिता परमेश्वर की आज्ञा को सुन रहा था। God loved the world. The Father loved the world. देखिए, परमेश्वर पिता ने इस पूरे जगत से प्रेम That is किया। what the Bible says. God loved the world. The Father loved the world. वचन में यही लिखा है कि पिता ने या परमेश्वर ने जगत से प्रेम He रखा gave his only begotten Son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया। His begotten Son loved the Father so much. उसके इकलौते पुत्र ने भी पिता से इतना प्रेम किया Listen to the Father very carefully. कि उसने पिता का सुना And he said, that act of obedience I will do. और उसने कहा कि जो पिता कहता है वो मैं आज्ञा पालन I करूंगा। love God. वो उसने कहा, मैं पिता I से, love you, Father. वो उसने कहा, हे परमेश्वर, हे पिता, मैं तुझसे प्रेम And करता हूँ। Job he read that verse, because you will know them because they love me and they obey my commandments. और भाई जोबी ने वो वचन को पढ़ा यूहन्ना 14 में, जहाँ यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। We obey God हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों करते because हैं? Jesus has done it all for us. क्योंकि यीशु ने हमें वो मार्ग दिखाया। And Jesus has one act of obedience has caused us to enter into righteousness. और यीशु के एक आज्ञा पालन करने से, एक आज्ञाकारिता के कारण हम सब अनंत काल के जीवन में प्रवेश हुए हैं। Read the 25 verses 21. So that as sin reigned in death, grace, 5 verses 21. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. रोमियो 5:21 में लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। What happens to each one of us हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? when we make an act of obedience? जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, We are entering into righteousness. तब हम धार्मिकता में प्रवेश होते When we हैं। are constantly living in obedience, जब हम आज्ञाकारिता में लगातार जीते हैं, we are continuing in righteousness. तब हम धार्मिकता में आगे बढ़ते And हैं। when this righteousness will lead us into eternal life. और ये जो धार्मिकता है वो हमें अनंत जीवन तक ले जाती I है। told you that during those periods of time they had two different kinds of slaves. और मैंने आपसे कहा उन दिनों में, उस समयों में दो तरह के दास हुआ करते Those who were born slaves. हैं। एक जो दासत्व में पैदा होते Those हैं who were slaves to escape their financial problems. और दूसरे जो दासत्व में अपने आप को बेच देते हैं ताकि अपनी आर्थिक समस्या से वो बचे। Paul says, don't be a slave to sin. पौलुस हमसे कहता है कि हमें पाप का दास नहीं बनना But है, we need to be a slave to obedience. लेकिन
हमें आज्ञाकारिता का दास बनना है। A slave who has a person who has financial great disaster or great problems in their life. एक ऐसा दास जिसके जीवन में आर्थिक तंगी है, He comes to the master and says, I want to be saved from my financial disaster. वो एक स्वामी के पास जाकर कहता है कि मुझे अपने आर्थिक समस्या से बचना है। I am going to be a slave to obedience. मैं तेरे आज्ञा का पालन करने के लिए खुद को दास बना। Whatever you tell me, तू जो भी मुझसे बताएगा, I will do. मैं वही करूँगा। You tell me to clean, यदि पोछे मारने को कहे, I will clean. मैं करूँगा। You tell me to carry a load, और अगर कोई बोझ। बहुत बड़ा बोझ उठाने को बोले, मैं वो करूँगा। I will do. मैं करूँगा। You tell me to cook, अगर खाना पकाने को I will बोलो, cook. मैं वो करूँगा। You tell me to deliver something, अगर कुछ सामान किसी को जाके I देना हो, will deliver. मैं वो करूँगा। Because by that, क्योंकि ऐसे करने I से am getting an income. मुझे एक तनख्वाह मिल रही है। And if I don't get an income, और यदि ऐसा ना मिले, I will be in a financial disaster. तो मेरी आर्थिक तंगी पूरी नहीं होगी। Those of us who are children of God, हमें से वे लोग जो परमेश्वर के बच्चे we are हैं, saved from sin. हम देखिए पाप से बच गए हैं, But we need to constantly live in obedience. लेकिन हमें लगातार आज्ञाकारिता में हमारा जीवन That is बिताना है। what Paul is saying. You need to be a slave to obedience. और वही पौलुस हमें समझा रहा है। वो कहता है आपको आज्ञाकारिता का दास बनना You don't है। have to do it. आपको कुछ करना नहीं है। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. You don't have to do it. जरूरत नहीं है. You don't have to do it, but you do it because you want to escape. देखिए हमारे सामने एक चुनाव है। हम चाहे तो नहीं भी करना है तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमें पाप की मजदूरी से यदि बचना है तो हमें ये करना The है। slave begins to become, this man becomes a slave to obedience because he wants to escape. देखिए ये जो व्यक्ति है, ये आज्ञाकारिता का दास क्यों बनता है? क्योंकि वो पाप की मृत्यु से बचना चाहता है। And I want you to understand something. अब मैं चाहूंगा कि हम इस बात को You know, we're समझें। talking about the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे, And I was asking the Lord, God, why is it only tongues is coming? No, only gifts of tongues is there. और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि पिता ऐसा क्यों कि जब पवित्र आत्मा के वरदान को तू भेज रहा है तो आजकल सिर्फ अन्य भाषा के वरदान He ही आ रहा है said, हमारे it बीच। is only because only tongues is being preached. तो परमेश्वर ने मुझे बताया वो इसलिए क्योंकि सिर्फ अन्य भाषा के वरदान के बारे में ही सिखाया जा रहा है। How do you speak in tongues? अन्य भाषा में कैसे बात करते हैं? When you pray to the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से He प्रार्थना gives, करते हैं the Holy Spirit gives you utterance. तो पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा की बोली देता है। And those who are obedient to the Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी है, they speak those words. वो उस अन्य भाषाओं को बोलते हैं। And the struggle is today, because we talk only about speaking in tongues, we are listening only for that. और संघर्ष यहाँ पे ये है क्योंकि आज हम आजकल हमारा जो ध्यान केंद्रित है सिर्फ अन्य भाषा के वरदान में, तो इसलिए जब पवित्र आत्मा का एक काम होता है तो हम उसी पर ध्यान देते हैं कि क्या हम वो वरदान पाते हैं कि Read that 17th verse. 17 It says, 6:17 पढ़ेंगे। thanks be to God that you who were once were slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए हैं। You see, God has placed people to teach. देखिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को सिखाने के लिए रखा है। And whatever you're hearing, और आप जो भी सुनते हैं, you have become obedient to. आप उसको पालन करते So हैं। you have asked for the Holy Spirit because you have been taught about the Holy Spirit. देखिए आपने पवित्र आत्मा के उस अन्य भाषा के वरदान के लिए इसलिए मांगा क्योंकि आपको वो सिखाया You गया have है। been obedient to the teaching because you have heard that when the Holy Spirit comes, He will tell you things. You utter things and you utter along with the Holy Spirit. आपने आज्ञाकारिता किस बात पे किया? जो आपको सिखाया गया, जो आपने सुना, उसके प्रति आप आज्ञाकारी रहे और इसलिए वैसे आपको मिला। As I was studying the Word, God reminded me. तो जैसे मैं वचन को सीख रहा It था, is in the परमेश्वर ने मुझे याद It is दिलाया। in the same manner the other gifts are being exercised. तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि बिल्कुल इसी रीति से बाकी के वरदान भी मिलते What are हैं। the other gifts? बाकी के वरदान Go to कौन 1 से हैं? Corinthians chapter 12 verses 8. पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों 12वें अध्याय का 8वें आयत। You read over there the utterance of wisdom, the utterance of knowledge according to the same Spirit. Gift of wisdom, gift of knowledge.
हम वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी Then जाती in the 9th verse, faith and gifts of healing. है। और उसके बाद 9वीं आयत में हम देखते हैं विश्वास और चंगा करने का वरदान। Then the working of miracles, prophecy, distinguishment in spirits and different kinds of tongues. और 10वीं आयत में सामर्थ के काम करने की शक्ति और भविष्यवाणी की वरदान और आत्माओं का परखने का वरदान And interpretation of tongues. और भाषाओं के अर्थ बताने का वरदान। Now this is what God reminded me. अब देखिए परमेश्वर ने मुझे ये बताया, Who gives them? Who gives these gifts? ये सब वरदानों को कौन देता है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा देता है। He does not get you to move your tongue to do these, utter these things, or you exercise these gifts. देखिए पवित्र आत्मा आके हमारे जीभ को जबरदस्ती पकड़ के हिलाता नहीं है। So you need to respond according to the gift that has been placed in you through the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर जो वरदान देता है और जो आपको कहने को करता है, जो करने को करता है, उसके अनुसार आपको अभिषेक। आज्ञाकारी बनना Now है। with speaking in tongues, देखिए अन्य भाषा बोलने के बारे में I told you, ऐसे I है told you that the Holy Spirit comes to you. कि मैंने आपको बताया जब पवित्र आत्मा आपके पास आता He है gives you utterance. वो आपको एक बोली देता है। Now I am outside, देखिए अब ये मैं बाहर हूँ but the Holy Spirit is within you. लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर है। Each one of you who have declared that Jesus Christ is Lord, the Holy Spirit is within you. आप में से हर एक व्यक्ति ने जो ये अंगीकार किया अपने मुंह से कि यीशु मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। But when you ask the Holy Spirit to baptize you, लेकिन जब पवित्र आत्मा से आप मांगते हो कि आप मुझे बपतिस्मा दो, आप मुझे परिपूर्ण अभिषेक दे the दो, Bible says, out of your belly shall flow rivers of living water. तो वचन में लिखा है कि जो विश्वास करता है उसके भीतर से, उसके अंदर से जीवित जल की नदियां बहती हैं। So when the Holy Spirit is giving you utterance to speak in tongues, तो जब पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषाओं में बात करने का जब वो एक आपको बोली देता है, He is giving you an utterance. वो आपको बोलने में सामर्थ्य देता है। Inside of you, He will say Jesus. आपके अंदर वो बोलेगा यीशु। And you listen, obey, and you respond. You say Jesus. तो जो पवित्र आत्मा आपको बोलता है आप उसको आज्ञा पालन करके आप अपने मुंह से बोलते हो यीशु। Right now I'm speaking in English. देखिए मैं अभी अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, But the Holy Spirit will give you a new language. लेकिन पवित्र आत्मा आपको नई भाषा देगा। So you say Jesus. The Holy Spirit says Jesus. You respond and you say Jesus. Jesus. क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जब वो बोलेगा आप उसी को आप बोलते हो। He says He is holy. जब अगर वो बोलेगा कि वो पवित्र है You respond He is holy. तो आप भी बोलोगे वो पवित्र है। But now what about the other gifts? लेकिन बाकी के वरदानों के बारे में क्या? Take any of the other gifts. कोई भी वरदान को आप The ले लीजिए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा the gift of healing, for जो- example, जो चंगाई का वरदान है, He will tell you, go and pray for so and so person. पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलेगा कि उस व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना करें। What will you do? आप क्या करोगे? You need to obey. आपको आज्ञा पालन You see, करना है। when I told, I'm outside, but understand, the Holy Spirit didn't say it. When the Holy Spirit gives you utterance, you obeyed, you responded, you opened your mouth and spoke. देखिए मैं अभी बाहर खड़ा हूँ लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो आपके भीतर है। जब वो आपसे जो कुछ करने को कहता है तो आप उसको सुनते हो और आप उसका आज्ञा पालन करते हो, आप वैसे करते हो। And so the Holy Spirit says, go and pray for that person. तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से बोलेगा उस व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना करो, It's because He wants you to exercise the gift of healing. क्योंकि वो चाहता है कि आप चंगाई के वरदान का इस्तेमाल करो। If He gives you a word of knowledge, जब वो आपको एक ज्ञान की बात बताता है and he says, listen, the church is going through go through a great revival. देखिए यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलेगा कि देखिए कलीसिया में बहुत बड़ी बेदारी आने वाली है, That's a gift of knowledge. तो वो एक ज्ञान की बात है। And He tells you, listen, the church is going to go through a great revival. तो पवित्र आत्मा आपसे इस प्रकार बोलता है। If you don't open your mouth लेकिन यदि आप अपना मुंह in खोलकर obedience to what the Holy Spirit said, जो पवित्र आत्मा ने आपको बताया, यदि आप अपना मुंह खोलकर you यदि have आप नहीं not बताते exercised the gift of knowledge. तो उसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का जो वरदान है वो उसका आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। If the Holy Spirit says, listen, this church needs to repent of their sins, यदि पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि आपके अंदर डालता है कि देखिए इस कलीसिया में उनके पापों से उन्हें मन फिराना जरूरी है, or He says, listen, go and tell that person, that person needs to repent of this so and so sin, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर डालता है आप जाके उस व्यक्ति से बात करो और उनको बोले कि इस पाप से आपको मन फिराना है, it's a gift.
तो वो एक वरदान है। But if you keep quiet, लेकिन यदि आप अपना मुंह बंद if you रखते हैं, don't obey, यदि आप उसका पालन who नहीं is at करते, fault? तो गलती किसकी है? I am at fault. Thank गलती you. मेरी है। That is what that verse says. और वही वहां पे लिखा है In that Romans chapter 6 verses 17, रोमियो 6 के 17 में, that word is given within your heart. You have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you are committed. तो यहाँ ऐसे लिखा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी 6:17, yes. Romans 6:17. कि उस उपदेश के मानने वाले हाँ, हो तो जा भी- गए. हाँ जी। Okay, you in from your heart you begin to respond. तो आप अपने दिल से उपदेश को मानने वाले बने। You have become obedient from your heart आप अपने दिल से उपदेश को मानने वाले बनते हैं, because the Holy Spirit is inside. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर He है। convicts you from inside. पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको वो बोझ देता But है, you need to respond from outside. लेकिन आपका जो प्रत्युत्तर है वो बाहरी रूप में दिखना चाहिए। I believe that days are coming. मैं विश्वास करता हूँ वो दिन आ रहे It's हैं even started right now. और वो शुरू हो चुके हैं। Many of you, जब आप में से अनेक लोग, the Holy Spirit will tell you from within पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपसे बात to करेगा, pray for people in your office. आपके ऑफिस के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। Don't say, God, I want the Holy Spirit. Come upon me. Holy Spirit, come upon me. Sit in church and ask for the Holy Spirit. ऐसे नहीं करें कि उस वक्त की प्रभु नहीं, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आए, You, उतर आए, उतर you आए। go ऐसा out. नहीं। आप जाए, The Holy Spirit tells you, listen, go and pray for that person. यदि पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि जाओ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना You करो, know, you see a person who has no legs. यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसके पैर And नहीं the है, Holy Spirit says, go and pray for that person. और पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल रहा है कि जाके उससे प्रार्थना करो, And you say, no, I'm not a pastor. I'm not a preacher. तो यदि आप बोलोगे नहीं मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, You're not a pastor. You're not a preacher. नहीं आप पास्टर नहीं हो, But प्रचारक you नहीं asked हो, for the Holy Spirit to baptize you. लेकिन आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आपने प्रार्थना किया। Go lay hands and pray. तो जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलता है वैसे ही करो, Simply obey. सिर्फ आज्ञा का पालन Because करो, when there is obedience, क्योंकि जब आज्ञाकारिता होती there है is blessing. वहाँ पे आशीष उतर आती है। When Jesus, I just want to end with this matter. और मैं बस इस बात से समाप्त करना चाहूंगा। When Jesus was baptized, देखिए लूका रचित सुसमाचार में जहाँ यीशु का बपतिस्मा होता I है, think it's in the third chapter. Is it in the third or fourth chapter? fourth. In the fourth chapter, when Jesus was baptized, over there it says, no, sorry, in the fourth chapter. It's in the fourth chapter when Jesus was baptized. In the 3 verses 22. Luke chapter 3 verses 22, it says, the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, you are my beloved son, in whom I am well pleased. Luke chapter 3 verses 22. It says, I am well pleased with you. तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और वह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न You know, हूँ। when I got baptized, देखिए जब मेरा बपतिस्मा हुआ, I was saying, God, just like Jesus, Lord, heaven open, Holy Spirit come down. तो उस वक्त मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि जैसे यीशु की बपतिस्मा हुआ उसी प्रकार मेरे बपतिस्मा के टाइम पे भी स्वर्ग खुले और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आए। Jesus, I'm obeying you. मैंने कहा यीशु मैं तेरी आज्ञा का I पालन want to see, oh Lord, everybody needs to hear that this is my child. तो मैं चाहता था कि सब लोग सुने कि ये मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ। God reminded me, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया people needed to hear that Jesus is the Son of God. लोगों को ये जानना जरूरी था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, Because by his act of obedience, क्योंकि उसके आज्ञाकारिता he से is going to continue doing acts of obedience that would lead him finally to the cross. और वो आज्ञाकारिता करता रह जाएगा और जब तक क्रूस की मृत्यु तक वो ना पहुंचे। But Jesus said, God was reminding me for you, what I am going to do. लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तेरे साथ मैं क्या करूंगा। Every time you do an act of obedience, जब भी तू एक आज्ञाकारिता का एक काम करेगा। Luke chapter 12 verses 8. लूका 12 के 8 में ऐसे लिखा And I है, tell you, everyone who acknowledges me before men, और वहाँ पे ऐसे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, the Son of Man also will acknowledge before the angels of God. उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा। God reminded me, प्रभु ने मुझे कहा when you are being baptized जब तेरी बपतिस्मा हो रही है because you want to obey me, क्योंकि
मेरे आज्ञा का पालन तू करना in चाहता है heaven, स्वर्ग में, because you acknowledged me on earth, क्योंकि तूने मेरा आज्ञा पालन इस धरती में किया, in heaven with the angels, I'm telling, listen, that's my child. मैं स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के सामने मैं कहूंगा कि देखो वो मेरा बच्चा है। Hallelujah. Hallelujah. In front of all the angels, he's saying, listen, that is my child. You know, look at how he's doing, obeying me. वो कहेगा, स्वर्ग दूतों के सामने कहेगा, सब लोग देखो वो मेरा बच्चा है, वो कैसे मेरे आज्ञा का पालन करता I है। said, God, why not on earth? मैंने पूछा कि क्यों इस धरती पे क्यों Why नहीं? are you not acknowledging? Why is not a voice coming on this earth? इस धरती में इस प्रकार की आवाज क्यों नहीं सुनाई He देती? reminded me, उसने मुझे ये बताया your destination is not this earth. कि तेरा जो मंजिल hallelujah. है वो ये धरती नहीं है, Your destination is heaven. तेरा मंजिल जो है वो स्वर्ग है। Because your destination is here, और क्योंकि तेरा मंजिल स्वर्ग में है, I am making you popular here. मैं तुझे यहाँ पे फेमस कर रहा हूँ। Because your destination is here, क्योंकि तेरा मंजिल यहाँ पे I स्वर्ग am में है, telling all those angels who are going to be serving you about you. मैं जो स्वर्गदूत तेरी सेवा करने वाले हैं, मैं उनको अभी से तेरे बारे में बता रहा And हूँ। not just that, और वही नहीं, because you obeyed me on the earth, क्योंकि तूने मेरा आज्ञा का पालन इस धरती पे किया, whenever you are going into a place where you have a great need, और जब भी एक जरूरतमंद समय से होकर तू जब गुजरेगा, you know who the angels are to you? Do you know who the angels are to you? तो उस वक्त ये स्वर्गदूत क्या करेंगे तुझे पता The है? angels are your ministering spirits. वो तेरी सेवा करेंगे, They're coming to save you, protect you. वो तुझे बचाने के लिए आएंगे, तेरी मदद करने And आएंगे, so, वो तेरी सेवा and करने so आएंगे। when I declare, listen, that is my child, तो take care of him. तो इसलिए जब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि देखो वो मेरा बच्चा है, वो तेरे रखवाली के लिए तैयार हो The जाएंगे। Bible says he will not let your feet to slumber or sleep. और वचन में लिखा है No, कि he'll not let your feet to slip. तो वचन में लिखा है कि वो तेरे पैर को ठोकर खाने से बचाएगा। He will send his angels, he'll command his angels about regarding you. वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरे पैर को ठोकर खाने से बचाए। Every one of you today, आप में से हर एक व्यक्ति when आज you respond to the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन when you करते हो, obey God, जब आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हो, God is acknowledging you तो परमेश्वर आपको मानता है in heaven. स्वर्ग में सबके And the सामने। angels respond to every time when you have a need. और हर वक्त जब आपके जीवन में एक जरूरत पड़ती है तो स्वर्गदूत तैयार रहते हैं। God commands his angels to come to your side, by your side. परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि मेरे बच्चे का Shall we- रखवाली को, shall मेरे we bow our बच्चे को heads, shall we मदद pray? करें। आए अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Some of you have never been to church. आप में से कुछ लोग कभी भी इससे पहले चर्च गए I want to नहीं say हैं। Jesus loves you. मैं आपसे कहना चाहूंगा यीशु आपसे प्रेम करता है। You can follow religion. आप धर्म का पालन कर सकते If you हैं। follow religion, आप यदि धर्म के पीछे you have to जाओगे do. तो आपको कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पड़ता You है। have to do so much for fulfilling your religious expectations. तो धर्म के जितने भी आपके प्रति, आपके बारे में जो उम्मीद है उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ कर्म करते रहना पड़ता है। But with Jesus, लेकिन जब आप यीशु के पास आते he हैं, came for a relationship. यीशु किसी धर्म को स्थापन करने के लिए नहीं, लेकिन एक रिश्ता बनाने के लिए आया। We were far away from God, हम सब परमेश्वर से दूर थे, but we are God's children. लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं। But like many children of this world, लेकिन इस संसार में अनेक जैसे माँ बाप के जितने संतान होते, जो बच्चे होते हैं, उनके प्रकार we have rebelled against our parents, or we have rebelled against God and run away. हमने भी उन बच्चों के समान हमारे पिता परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर हम उससे दूर चले गए थे। Jesus came to bring us back to our Father. यीशु इसलिए आया ताकि वो हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ दोबारा जोड़े, Introduce us back to the Father. ताकि स्वर्गीय पिता के साथ हमें दोबारा मिलाए। Jesus died for you. यीशु आपके लिए मरा। God the Father loves you so much. पिता परमेश्वर आपसे बहुत He प्रेम loves you करता so है। much. वो इतना प्रेम रखता He है। knew that the punishment that was for you was death. वो जानता था कि आपके जीवन में आपके हर काम के वजह से जो मजदूरी है, जो आपका जो तनख्वाह जो आपको मिलना है आपके कामकाज का, वो मृत्यु ही है। But God himself comes down. लेकिन परमेश्वर खुद इस संसार में उतर आता He है। dies for you वो आपके लिए मरता because he है। loves you. वो आपका स्थान He ले wants लेता to- है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता He है। wants to return you back to God the Father. यीशु चाहता है कि वो उसे आपको वापस पिता परमेश्वर के साथ जोड़े। All you have to do
आपको सिर्फ इतना करना is say, है, Jesus, I'm a sinner. वो आपको सिर्फ इतना करना है, बोलना है यीशु मैं एक पापी हूँ, I deserve to die. मैं मरने के लिए योग्य था, The wages of my sin is death. मैं योग्य हूँ, मेरे हर कामकाज का जो आखिरी जो सब भी मजदूर। मजदूरी है वो मृत्यु है, But you died for me. लेकिन तू मेरे लिए You मरा, were buried. तू गाड़ा गया You were resurrected. और तू जी उठा, And you're preparing a place for me. और आज तू स्वर्ग में मेरे लिए जगह तैयार कर रहा I है। receive your death as compensation for my sins. मेरे पाप के जगह मैं तेरे बलिदान को स्वीकार करता हूँ। I receive you as into my life as the Lord and my Savior. मैं तुझे मेरे जीवन में मेरे जीवन का उद्धार करता और मेरे जीवन के प्रभु के रूप में मैं स्वागत करता Just हूँ। simply pray that prayer. इस छोटे से प्रार्थना इस प्रकार से आप यदि यीशु से बात करोगे, You will experience a peace right now. आप अपने अपने शब्द में इसी रीति से यीशु से बात करो, यीशु आपका सुनता है। और जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में इसी वक्त आप शांति को महसूस You will करेंगे, experience a joy right now. आप इसी वक्त आनंद को महसूस Some of करेंगे। you might have been orphaned from your birth. आप में से कुछ लोग आपके जन्म से ही अनाथ हैं। You might say, nobody loves me. आप बोलते हो कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, God says, I love you. लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझसे Your प्रेम friends करता can हूँ। reject you, आपके मित्र आपको छोड़ but I देंगे, love you. लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I also want to say, those of you who are praying for the Holy Spirit, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, आप में से वे लोग जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, ask, मांगे, you have received. और यदि आप मांगोगे तो आप पाओगे। Now start doing acts of obedience. आज्ञाकारिता के काम करना शुरू करें। If God tells you to pray, यदि प्रभु आपसे, आपके मन में आपसे कहता है प्रार्थना करने, प्रार्थना करें, pray for people. लोगों के लिए प्रार्थना If करें। God tells you go and share the gospel to that person, यदि प्रभु आपको कोई व्यक्ति दिखाता है, उनके लिए, उनसे जाके सुसमाचार बांटने को कहता है, तो वो वैसे ही करे। if God tells you don't drive this road, drive the other road, यदि खुदा आपके अंदर बोलता है कि इस रास्ते से ड्राइव ना करे, दूसरे रास्ते से ड्राइव करे, if God shows you a dream, यदि खुदा आपको एक सपना दिखाता है, whatever God does, जो भी खुदा आपसे बात करता है, speak it out. उससे आप करें। Come and tell the pastor. पास्टर को आपके बताया कि आपने क्या देखा, Come and tell Sheba. शिवा सिस्टर से बताया आपने क्या देखा। Let us know. आप हमें बताइए कि प्रभु ने आपको क्या दिखाया। But begin to exercise. लेकिन जो प्रभु आपसे करवाता है उसका आप पालन करना शुरू करें। For a moment, just lift up your hands, just stretch out your hands for a moment, कुछ क्षण के लिए अपने हाथों को उठाए and just say, "Welcome, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को स्वागत करें Welcome, Holy Spirit. और बोले, पवित्र आत्मा हम तुझे स्वागत करते Fill हैं, me right now. मुझे इस वक्त भर दे, Fill me right now, इस वक्त तू मुझे भर दे and overflow from within me." और मेरे अंदर से उमड़ कर तू बाहर निकल। Jesus. Those of you who do not have peace, let the peace of God descend. आप में से वे लोग जिनके जीवन में शांति नहीं है, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उतर आए। Those of you who do not have, those of you who have questions in your mind, may there be clarity with regard to those questions. आप में से वे लोग जिनके मन में अनेक सवाल है, इस वक्त आपके सवालों का उत्तर आपको मिले, उसको आपको साफ रीति से आपको बातें समझ आ जाए। Those of you who have been betrayed in relationships, may God's love come over you. आप में से वे लोग जो जिनको रिश्तों में, आप अलग अलग रिश्तों में जहां आपको धोखा मिला है, परमेश्वर का प्रेम आपको शांति दे। Especially who have been betrayed by your own parents. और खासकर वे लोग जो अपने माता पिता ने के द्वारा धोखा खाया है, Betrayed by your sister and betrayed by your brother. आपके अपने बहन ने आपको धोखा दिया, आपके अपने भाई ने आपको धोखा दिया है। Jesus is here for you. आज यीशु आपके लिए है, Jesus is here for you. आज यीशु आपके लिए यहाँ पे है। Some of you are saying, I cannot study. आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। He is a giver of wisdom. परमेश्वर ज्ञान देने वाला है, He is a giver of wisdom. वो ज्ञान का देने वाला He है। made Daniel, who was a prisoner, दानियल नामक व्यक्ति जो एक कैदी था, he was one of the wise men in a country. वो उस बाबिलोन देश का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बना। He made Joseph, who was a
prisoner और परमेश्वर ने मिस्र देश में एक कैदी बनकर गया था, यूसुफ नाम कर who व्यक्ति, became one of the topmost persons, almost like the prime minister of Egypt. और मिस्र का सबसे उच्च अधिकारी फिरौन के साथ खड़ा रहने वाला सबसे उच्च अधिकारी के रूप में उसको परमेश्वर ने उठाया। Some of you are struggling with your schooling, your education. आप में से कुछ लोग अपने स्कूल, अपने एजुकेशन को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं। Jesus is a giver of wisdom. प्रभु यीशु ज्ञान देने वाला है। Just pray. प्रार्थना करें। Welcome him. यीशु को स्वागत Welcome करें। him. यीशु को स्वागत Some of you are asking, God, is this true? आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु ये सच्चाई Is है? this God real? क्या ये सच्चाई है? Yes, this God is real. हाँ, परमेश्वर सच्चा है। He is not a story. परमेश्वर कोई कहानी He नहीं is है। not a story. परमेश्वर कोई कहानी He नहीं is है। real. परमेश्वर सच्चा He है। is real. परमेश्वर सच्चा In है। fact, you will experience His presence if you call on Him. यदि आप उसको पुकारोगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप वास्तविक रूप में महसूस Father, करेंगे। we thank you right now. Every eye is closed. Just for a moment, just pray and ask. Father, right now we pray for each and every single person who is here. पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, परमेश्वर आपका हाथ स्पर्श रीति से उनको महसूस करने के लिए हम दुआ करता हूँ। परमेश्वर अंधकार से परमेश्वर आपने उनको खींच के यहाँ पर लेके आया है। You've taken them, pulled them out from darkness and you brought them out. आग से परमेश्वर, जलते हुए आग से परमेश्वर आपने उनको खींच के निकाला। इस वक्त आपका सामर्थ उनके शरीर पे आने के लिए हम दुआ करता हूँ। सामर्थ उनके शरीर पे आने के लिए दुआ करता हूँ और अंधकार की जगह परमेश्वर आनंद आने के लिए हम दुआ करता हूँ। इंस्टेड ऑफ डार्कनेस जॉय, परमेश्वर अंधकार की जगह परमेश्वर आपका आनंद उनके शरीर में आने के लिए, उनके जीवन में आने के लिए परमेश्वर आंसू को परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर, आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर को परमेश्वर बहुत बार, परमेश्वर मुझे याद दिला रहा है, बहुत बार अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए आपने कोशिश किया। आपने अलग अलग वजह से अलग अलग समय पर आपने अपने आप को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश किया। परमेश्वर कहता है मैं तेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपका दोस्त, आपका लोग आपको छोड़ सकते हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आनंद से परमेश्वर इस वक्त लोगों को भर दे, आनंद से लोगों को भर दे। धन्यवाद करते कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को छू रहा है। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुग्रह हम में से हर एक व्यक्ति अब से हमारे अंत तक रहे और सब मिलके बोलते हैं आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। देयर इज टी and some snacks for all of you. Please have the tea and snacks. At 1:30 we need to be at another location for baptism. Those of you who are coming for baptism, you can join us for the baptism. It's at Ram Darbar. Ram Darbar में हम baptism हम रखा है, तो जो लोग आना चाहते हैं आप वहाँ पर आ सकते हैं। या अभी इस वक्त आप कृपया जो लोग just please do join us for the time of snacks and fellowship. God bless you.